comprehensive material to all the topics that are referred in the syllabus. So you'll have to be very knowledgeable about that. I was part of the foundational course for the Vision IAS in the 2021. तो ठीक है, मतलब आई थिंक फाउंडेशन कोर्स का मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको एक रोड मैप मिल जाता है. अगर नहीं हो रही तो मे बी फाउंडेशन कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो. तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हर साल 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, जो केवल क्वेश्चंस पढ़ के आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखना है. अगर आपने खुद से थोड़ा सा भी PYQ एनालिसिस किया है जस्ट 7-8 ईयर्स का, आप समझ सकते हैं कि सर्टेन क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, उसके ऑप्शंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं. कोई ऐसा वो नहीं है तरीका कि शॉर्टकट तो कोई नहीं होता, मेरे पर्सनली जो मुझे पता है. PT 365 कर लीजिए, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ. कि पेपर 2 थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड होता है, तो आप इंटरकनेक्शन डेवलप कीजिए कि कैसे पेपर 1 की चीज़ें पेपर 2 में डाली जा सकती हैं. Good afternoon. So today we have amongst us all India rank 218 UPSC CSE 2024, Soumya Sharma. Soumya has also been a classroom student with us. So before I give on the dice to him, I would like to share some things about him. So almost anyone who makes it through this paper, any topper, deserves to be there in their own right, right? So, however, there are a few people whom you meet and are very impressed by their humility, and you immediately feel that people like him should be a part of civil services because of their sheer dedication to the public service. I have known Soumya for a few months now, and on numerous occasions, I have had the chance to see him helping others before he was helping himself. He has been there for his peer group always and taken a lot of time to help them as and when required. Right, so Soumya was born in Pratapgarh, UP. From there, he did his education, after which, for his graduation, he went to BITS Goa campus and did BE in mechanical engineering. Post this, he has been working as an income tax inspector in Delhi for the past 2.5 years, and now he'll be joining the civil services by getting 218 this year. Right? Please give a huge round of applause to Soumya. I would now request Ravi sir to please come over and felicitate him. Can we have Shivi ma'am now to please come over and felicitate Soumya? Thank you, ma'am. Ma'am, if you could please also give that book to Soumya. Thank you so much. Now I'm giving the dice to Soumya. You all can have all the questions that you have in your mind. Thank you so much. Hello everyone. My name is Soumya Sharma. As ma'am already told you, I have done my mechanical engineering from BITS Pilani Goa campus. After that, I worked for a year in a consulting sector in Hyderabad. Thereafter, I pivoted towards UPSC preparation. But since it was COVID-19 year, so I deferred it for 1 year and started my plan B, which was to have a job alongside. And for that, I gave my SSC CGL in that year, and I was able to get income tax inspector from that. So plan B was very important for me. I will talk about it later on. This was my 4th attempt, and 3rd means second interview. So you can call me a veteran in the field. And I'll talk about more what was different this time around. Let me start with some of the things which might be knowing by most of the people that are present here, that you have to start from NCRTs, you have to start from some of the reference books that are very well known to everyone, which are Lakshmikant, which is Spectrum I use for modern Indian history. So all of those books. Other than that, because I was a working professional,
it was very important for me to maybe have very less amount of content and revise it more often. So for that, I focused on the PDF that is already available. You can select any coaching's material. It is not of any issue. But you'll have to ensure that whatever content you choose, it should have comprehensive, uh, comprehensive material to all the topics that are referred in the syllabus. So you'll have to be very knowledgeable about that. I was part of the foundational course for the Vision IAS in the 2021. So in that year, I have to talk about some of the names who teachers जिनका बहुत important role था, because आपको भी ये लगता होगा कि जब आप कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं या कंटेंट पढ़ रहे हैं, यू डू नॉट नो कि ठीक है मैं पढ़ तो लिया, बट अब इससे आंसर्स कैसे लिखने हैं, इससे आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं. आप PYQs देखते हो, आपको लगता है कि भाई ये तो ऊपर से जा रहे हैं. तो मे बी उसके लिए आपको एक मतलब आपको रोड मैप तैयार करने के लिए खुद से पर्सनल आपको कई बार ज़रूरत पड़ती है टीचर्स की. तो फॉर मी दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द फाउंडेशन कोर्स दैट आई डिड इन द विजन IAS. सो फॉर एग्जांपल नीरज राव सर इज़ देयर. आई थिंक वो अभी भी पढ़ाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वगैरह. सो बहुत ही मतलब मुझे बहुत पसंद थे वो उस टाइम पे भी. लेट जुल्फ़िकार सर थे फॉर इकोनॉमी, बहुत ही बढ़िया टीचर थे वो भी. स्मृति शाह मैम थी. सो जतिन सर भी थे. यस. सो वो तो बिट्स के भी हैं, तो हमारा एक अलग सा वो भी लिंकेज है. तो ठीक है, मतलब आई थिंक फाउंडेशन कोर्स का मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको एक रोड मैप मिल जाता है, दैट यू नाउ नो हाउ टू डू द प्रिपरेशन, हाउ टू कंसाइज योर ओन मटेरियल. कई बार आप वैल्यू एडिशन अपनी तरफ से भी करते हैं, बट आपको नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ें फ्रॉम PT 365, फ्रॉम मैगजीन या फ्रॉम न्यूज़पेपर्स आपको उठा के रखनी है. तो आपको उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पता होना कि क्या चीज़ें स्टैटिक में इंपॉर्टेंट है. जो चीज़ें स्टैटिक में इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें करंट में भी इंपॉर्टेंट होती हैं. तो उसी से रिलेटेड फैक्ट्स, उसी से रिलेटेड डेटा आप उठा के रखते हैं इसमें. तो मैं थोड़ा उसके बारे में बात करूँगा अभी. कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी है इसके लिए, और ये मैं अपना पर्सनल एग्जांपल्स देके बताऊँगा कि क्यों नहीं करनी है. तो जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मेरा फाउंडेशन कोर्स हो चुका था विजन IAS से, और मैं प्रिपेयर्ड नहीं था बिकॉज मैं प्रिपरेशन कर रहा था उसमें प्लान B की. कोविड-19 का टाइम था. तो मैं फिर भी जाके दे आया. मैंने बोला चलो जाके दे के आते हैं, देखते हैं क्या होता है. और मेरे मार्क्स प्रीलिम्स में बहुत कम है, 75 मार्क्स. और मुझे याद है लास्ट जब मैं थर्ड अटैम्प्ट इंटरव्यू के बाद मेरा नहीं हुआ था और मैं फोर्थ अटैम्प्ट दे रहा था, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि भाई क्या पता ऐसा टाइम ना आए कि वो एक अटैम्प्ट जो मैंने वेस्ट किया वो बाद में मुझे खटके. तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कि कोई भी अटैम्प्ट आपको बहुत ही लाइटली नहीं लेना है. आपको जो भी अटैम्प्ट देना है फुली इन्फॉर्म्ड होकर देना है, फुली प्रिपेयर्ड होकर देना है. कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए. जैसे मेरे लिए ये था कि फॉर द 2.5 ईयर आई वॉज ऑलरेडी अ वर्किंग प्रोफेशनल. सो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सैटरडे संडेज़ का यूज़ करना. मे बी एवरीडे अगर नहीं भी पढ़ाई हो पा रही है तो 2 से 3 घंटा 4 घंटे पढ़ लेना. मे बी न्यूज़पेपर ही केवल देख लेना. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंसिस्टेंसी आप ब्रेक ना करो, अदरवाइज़ वो वापस से उस सेम चीज़ में जोन में आने में, पिकअप करने में इट टेक्स टाइम. और एक चीज़ और है जो इस अटेम्प्ट में आई थिंक बहुत मेरे लिए मैटर की है, और बहुत ज़्यादा मैटर की है. मैं बहुत आप लोगों को सजेस्ट करूँगा वो चीज़, टू हैव अ मेंटोर. मतलब कोई भी मेंटोर हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि समवन फ्रॉम अ UPSC बैकग्राउंड या कोई जो ऑलरेडी कोचिंग्स वगैरह में पढ़ा रहा है. कोई भी जिसने भी लोगों को मेंटोर किया हो, पॉजिटिव टाइप का पर्सन हो, ऑप्टिमिस्ट हो, ही नोज़, मतलब ही हैज़ फेस्ड चैलेंजेस इन हिज लाइफ. मेरे लिए इस बार वो रोल प्ले किया था. कुछ थे मेंटोर्स मेरे जो मुझे मिल गए थ्रू सम म्यूचुअल फ्रेंड्स. एंड वो जब आप उनकी स्ट्रगल फेस देखते हो कि भाई उनको 6 अटेम्प्ट्स लग गए, 6 अटेम्प्ट में जाके उन्होंने क्रैक किया एंड देन गॉट IPS. सो आपको लगता है कि जब उनका भी ऐसा स्ट्रगल हो सकता है तो मे बी आपका भी हो कुछ. सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है. लास्ट में फिर आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताओगे किसी और को, आप जब मेंटोर करोगे यू नो, तो दैट साइकिल गोज ऑन. तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव पीपल, ऑप्टिमिस्ट पीपल, जो लोग आपकी हेल्प कर सकें, जो खुद फेस से गुजरे हों और उनको पता हो कि बीइंग हार्ड वर्किंग, हैविंग परसिवरेंस, जो केवल हम पढ़ते हैं नहीं, बस उसको प्रैक्टिकली आपको यूज़ भी करना, यूटिलाइज़ करना भी आना चाहिए. ब्रूट फोर्स नहीं रखना चाहिए जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो कई बार ऐसा मैंने कई बच्चे मुझे पिछले 7-8 दिनों में मिले हैं जो मतलब मुझसे कह रहे थे कि भैया मैंने सारी बुक्स पढ़ ली है, सब कुछ कर लिया है, 2-3 बार रिवाइज़ कर लिया है, कंटेंट भी कर लिया है, लेकिन अभी भी क्वेश्चंस हो नहीं रहे.
तो वो इसका उसका रीज़न, सोल रीज़न जो मुझे समझ में आया वो यही है कि ब्रूट फोर्स मेथड। ब्रूट फोर्स मेथड का मतलब है कि आप पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, आप रिवाइज कर ले रहे हो, आप जितने भी कंटेंट जो भी बुक्स है आप सब कर ले रहे हो, बट आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। तो फोकस कीजिए कि कहीं से भी, इफ़ इट इज़ बीइंग, अगर आपको वो टेलीग्राम के ग्रुप से मिल जा रही है तो वेल एंड गुड। अगर आपको बुक्स पढ़ के हो जा रही है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थ्रू यूट्यूब वीडियोज़, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं हो रही तो मे बी फाउंडेशन कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ये मेन चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। किसी को कुछ पूछना है क्या अभी तक? कुछ ऐसा तो नहीं, आगे बढ़े? ठीक है, प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। तो प्रीलिम्स में पहली चीज़ मैं हर चीज़ में बोलूँगा, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, इंटरव्यू हो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पूछना है? तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। प्रीलिम्स तो आप सबने देख लिया है, आप कितना भी नॉलेज ले लो, कितना भी पढ़ लो, इट इज़ बिकमिंग वेरी हार्ड फॉर एवरीवन टू क्रैक। बट ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिना पढ़े भी जा रहे हैं और उनका हो जा रहा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो उन्होंने एक सर्टेन वे ऑफ डिकोड कर लिया है कि कैसे करने क्वेश्चंस को। उसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। तो पहली चीज़ें हैं, मैं पहली बार लिख रहा हूँ तो उसमें बहुत अच्छे से ना है तो बता देना, ठीक है? समझ में आया क्या लिखा है? ठीक है, तो ये पहला है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, मैं सेकंड क्यों लिखा हूँ उसमें? क्योंकि आप हर साल 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, जो केवल क्वेश्चंस पढ़ के आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखना है। अगर आपने खुद से थोड़ा सा भी PYQ एनालिसिस किया है जस्ट 7-8 ईयर्स का, आप समझ सकते हैं कि सर्टेन क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं और उसके ऑप्शंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। ये कोई सिखाएगा नहीं। ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे कि भाई ये 20 ट्रिक्स सीख लो और आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, या 25 ट्रिक्स सीख लो। कई लोग जाके लगाए, उनके 60-70 मार्क्स आए, जिनको मैं जानता हूँ इस बार। तो कोई ऐसा वो नहीं है तरीका कि शॉर्टकट तो कोई नहीं होता, मतलब मेरे पर्सनली जो मुझे पता है। बट अगर आप खुद से सेल्फ इनिशिएटिव ले रहे हैं PYQ को एनालिसिस करने का, तो सेकंड चीज़ को बहुत ध्यान रखना है आपको। अब आप खुद देखेंगे हर साल क्वेश्चंस आता है इंसेक्ट्स का, एनिमल्स का, वो 5 दे देते हैं। अब आपको उसमें से कुछ चूज़ करने पड़ते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे उन इंसेक्ट्स के बारे में, थोड़ा सा भी अगर आपको बेसिक नॉलेज है, कहीं से आपने चैनल पे देखा है, तो आप समझ सकते हो कि यू कैन ग्रुप देम, कि भाई ये सर्टेन ग्रुप्स के हैं, ये सर्टेन ग्रुप्स के हैं। लास्ट ईयर जैसे एक क्वेश्चन आया था, उसमें था वॉस्प वाला, कोई क्वेश्चन था जिसमें 5 थे, उसमें एक वॉस्प था, सेंटीपीड वगैरह थे उसमें अलग अलग। आप बहुत आराम से उसमें पूछा गया था कि पैरासिटाइड वाले कौन से एनिमल्स हैं इसमें, जो पैरासाइट जिन बिहेवियर शो करते हैं। तो उनमें आप बहुत आराम से वो 3 को अलग कर सकते थे, 2 को अलग कर सकते थे, अगर आपको थोड़ा बेसिक भी हो भाई कि ये इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, ये एनिमल्स ऐसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, उसमें जो स्टेटमेंट्स लिखे उसको ध्यान से पढ़ लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। कोई उसका वो ऐसा ट्रिक उसमें अलग से डाल के नहीं रखा है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो माइंडसेट है, जो बंदा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, उसका किस माइंडसेट से। तो अगर वो बहुत कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि कंसेप्ट वाला है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको नॉलेज हो। और मैं इसलिए प्रीलिम्स का बता रहा हूँ कि दिस वुड बी माई 4th प्रीलिम्स, आई हैव गिवन दिस ईयर्स प्रीलिम्स ऑल्सो। दिस वुड बी माई 4th प्रीलिम्स जो मैंने मतलब सब्सिक्वेंटली दिया है। 5th प्रीलिम्स है, 4th प्रीलिम्स जो कि मैं आई विल बी एबल टू, अभी कुछ बोल नहीं सकते, बट स्टिल वॉट एवर, मतलब जो कोचिंग आंसर की से आ रहा है, इट इज़ गुड मार्क्स। तो मैं इस बेसिस बता रहा हूँ, लास्ट ईयर मेरे 107 मार्क्स थे इसमें। आपको ध्यान रखना है कि पहला तो कंसेप्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें नॉलेज आपका मेन चीज़ रहेगा, फोकस। सेकंड जो है, अब जैसे ये कुछ बाउंसर क्वेश्चंस हैं, ये बाउंसर क्वेश्चंस अगर आप सोचो कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो आप खुद सोचिए, अपने खुद मतलब उस जगह पे रखिए और खुद सोचिए क्या ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आपको पता हो ये 5 एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वो आपसे चाह रहा है कि आप क्या रिस्क ले सकते हैं।
क्या आप ये देख सकते हो कि आप ग्रुप्स कर सकते हो उनको, क्या आपको थोड़ी सी भी जनरल अंडरस्टैंडिंग है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जब आप कोई नेट जियो की कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं या कुछ भी आप देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो, क्या आप एक ओपन माइंडसेट से सोच रहे हैं? ये सेम चीज़ें वो क्वेश्चन पे, अब ये उस तरह का नहीं रह गया कि आप बुक पढ़ लो और निकाल के ले आओ। इट इज़ बिकमिंग वेरी टफ, और ये हर साल और ज़्यादा रैंडम और एब्स्ट्रैक्ट होता जाएगा। ये जो मतलब 3 साल से दिख रहा है, तो ये तो वैसे ही दिखता जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाउंसर में इट इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, वो आपसे चेक कर रहा है कि भाई इंट्यूशन आपका, वो आपसे आपका करेज चेक कर रहा है। थर्ड, ये बहुत लोगों ने किया है, पता नहीं क्यों, मतलब ये इस पे इतना फोकस नहीं किया जाता, बट ये मतलब मैं पर्सनली जानता हूँ कई लोगों को जो जिनको ये इश्यूज आए थे, कि वो जब सेकंड आइट्रेशन में कुछ क्वेश्चंस पे जाते हैं, और सेकंड आइट्रेशन पे आपको दिख रहा है, जब सेकंड आइट्रेशन पे कई क्वेश्चंस पे हो जाते हैं तो अपने ऑप्शंस चेंज कर देते हैं। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनके उसमें 80 to 90% गलत होते हैं जब वो सेकंड आइट्रेशन में जाते हैं और चेंज करते हैं। तो फर्स्ट आइट्रेशन में ही अगर आपने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया है, और जो भी आपका इंट्यूशन, जो भी आपकी नॉलेज के हिसाब से है, तो स्टिक बाई इट। मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, कई बार वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक ही होती हैं। तो ये ओवर थिंकिंग वाली बहुत बड़ी इशू आ जाती है प्रीलिम्स में, क्योंकि क्वेश्चंस ही ऐसे फ्रेम किए जा रहे हैं कि आप ओवर थिंक करो। बाकी आप इसमें आई थिंक कई सारे टॉपर्स हैं जिनका वो कैसे प्रीलिम्स अप्रोच करते थे ना, वहाँ से भी आप देख सकते हो, और फिर आप इसको खुद से अप्लाई कर सकते हो। आप मॉक्स उठाइए, आप लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए और खुद से अप्लाई कीजिए। कोई भी चीज़ किसी की मतलब सीधे नहीं ले लेनी कि भाई ठीक है इसने बोल दिया तो ये सही होगी। खुद से जाके अप्लाई कीजिए, और कुछ अगर आपको लग रहा है कि आपको खुद की तरफ से समझ में आए कि भाई ये उन्होंने नहीं बोला था, ये मुझे समझ में आ रहा है, देन स्टिक बाय इट। कॉन्फिडेंस होना चाहिए इतना आपको अपने ऊपर। तो आप यहाँ कुछ टॉपर्स का होगा, मतलब आई थिंक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक थे लास्ट ईयर टॉपर को, उन्होंने किसी चैनल पे तो डिस्कस किया था कि उन्होंने वो कैसे प्रीलिम्स को अप्रोच करते हैं, उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे, 120s में रहे मार्क्स। तो यू कैन सी दैट कि वो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी कैसी रहती है प्रीलिम्स की, एंड देन फ्रेम योर ओन। वो यूनिकनेस वो हर जगह मैं बताऊंगा कि भाई वो तो काम ही आती है। ठीक है, तो मतलब इसमें जो मुझे दिख रहा है यही है कि भाई नॉलेज सबसे ऊपर रहता है, फिर नॉलेज के बाद आपका इंट्यूशन, आपकी लॉजिक, वो थोड़ा सा दिमाग खुला रहेगा तभी होता है वो। अगर आप उस दिन बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं कि प्रीलिम से नहीं निकला तो कैसे होगा आगे का, तो वो ये वाला फेल हो जाता है सेकंड। और थर्ड है फिर आपके जो भी इंसाइट्स आपने जनरेट किए हो पीवाई क्यू एनालिसिस से। ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके से आपको प्रीलिम्स जिस दिन आप देने जा रहे हैं आपको नॉर्मलाइज रखना है उस दिन को, एकदम नॉर्मल, कुछ भी ऐसा नहीं कि मतलब ये ऐसा मेक और ब्रेक डे है। बहुत नॉर्मल करके जाइए, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए या तो उससे पहले कि वो नॉर्मल हो, या कुछ इस तरह के मेंटर या लोगों के साथ रहिए जो थोड़ा चिल माइंड वाले हो। आपको उस दिन चिल होके जाना है, थोड़ा दिमाग खुला रखना है, तभी ये सेकंड थर्ड लगेगा। नहीं तो आप, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके कैंडिडेट्स को मैं जानता हूँ, 3-3 4-4 बार इंटरव्यू दिया है, 5th 6th अटैम्प्ट है और उनका इस बार का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो चुका है ये चीज़ें, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर्स का कैसे करना है फॉर प्रीलिम्स। तो मैं जैसे वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मेरे लिए पीटी 365 ही था। साल भर मैं कुछ नहीं कर रहा था, मेरे पास इतना समय नहीं होता था। स्टैटिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका आई थिंक वैसे ही निकल जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। करंट में आपका, अगर आपको स्टैटिक नॉलेज अच्छा हो तो कई चीज़ें आप करंट में भी उसमें डाल सकते हो। पीटी 365 कर लीजिए, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। आपका उससे स्टैटिक का मेन जो पार्ट है दैट कुड बी आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम स्टैटिक, वो भी आपका समझ में आ जाता है, एंड आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस भी हो जाती है। और उसके अलावा अगर कुछ बहुत बाहर का आ रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली किसी से भी नहीं होगा, क्योंकि फिर वो ऐसी रैंडम चीज़ें पूछेगा करंट अफेयर में कि किसी को नहीं पता। तो प्रीलिम बहुत ज़्यादा लोड मत लेके रखिएगा करंट अफेयर्स का। पीटी 365 आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ। अगर आप उसके अलावा मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, देन दैट इज़ गुड। कुछ प्रीलिम्स में और किसी को कुछ इनपुट वगैरह कुछ देना, कुछ पूछना है किसी को? चलो, हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो जैसे प्रीलिम्स के लिए जैसे मैंने आपको एनिमल्स वाला बताया था एक क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया था,
तो यू कैन वेरी वेल ग्रुप देम, कि आप कुछ स्टेटमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं और कुछ स्टेटमेंट्स को आप कि ये इस टाइप के जो एनिमल्स हैं ये डिफरेंट है, ये एनिमल्स डिफरेंट है, और आपको उससे ऑप्शन हो रहा है। एंड देन फिर वो थोड़ा सा करेज भी चाहिए कि भाई शुड आई मार्क इट और नॉट, तो वो तो फिर अगेन वो तो आ ही जाता है, दैट एंगल इज़ ऑलवेज देयर। उसके अलावा कुछ इस बार के जैसे क्वेश्चंस था जितना मुझे ध्यान आ रहा है, सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है उसके ऊपर था। तो अब उसमें स्टेटमेंट्स अब क्योंकि आंसर की नहीं आई तो हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है, बट अगर आप उसके स्टेटमेंट्स देखो ना, अगर एक थोड़ा जनरल माइंडसेट ओपन व्यू रखोगे कि भाई मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, आप देखेंगे उसके तीनों स्टेटमेंट्स आपको लगेगा कि हाँ दिस इज़ करेक्ट। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगेंगे तो आप फिर वहाँ पे फंस जाएंगे, नंबर्स में आप फंस जाएंगे। जैसे कुछ कुछ एरियाज़ होते हैं जो आपको बहुत आराम से आप पैटर्न नोटिस कर सकते हैं कि अगर कहीं पे 2-3 फैक्ट दिया गया तो मोस्ट प्रॉब्ली समटाइम्स होता है कि उसमें एक फैक्ट हो या ऊपर या नीचे करते हैं, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में अगर वो 2-3 फैक्ट दिए हैं तो ये बहुत वेरी वेल नोन भी है। आई थिंक काफ़ी लोग इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं कि भाई कुछ चीज़ें तो मुझे समझ में आ रही, बट कुछ फैक्ट तो इसमें जो लग रहे हैं कि ये तो या तो हमें पता नहीं होने चाहिए थे या पता नहीं हो सकते थे, और वो अगर ये पूछ रहा है तो फिर वो क्या जज कर रहा है। तो आपको उस टाइम पे ये वो उसी टाइम की चीज़ है, या आपको पहले से कोई नहीं समझ में आएगा। आप PYQ एनालिसिस करोगे ना तो आप थोड़ा मच बेटर प्लेस में रहोगे कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आ गया अगर मेरे पास कि इतने सारे फैक्ट्स हैं, अब मैं इसको देखूं कैसे, किस नज़रिए से देखूं। तो आपको पहला स्टेटमेंट आपने पढ़ा, आपने देखा कि 1-2 स्टेटमेंट्स तो ठीक है, ये नॉलेज में होने चाहिए थे लोगों के, बट कुछ स्टेटमेंट्स तो एकदम ही बाउंसर है और उसमें फिर बहुत ज़्यादा डेटा की डिस्कशन कर दिया गया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको फिर वहाँ पे वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि मोस्ट प्रॉब्ली दिस माइट बी रॉन्ग। तो कुछ इस तरह के इंट्यूशन, मैं वही कह रहा हूँ कि सेकंड नंबर पे आपका इंट्यूशन आ जाता है, ये उसी टाइम पे काम करता है। इसका पहले से कोई प्रैक्टिस तो होगी नहीं, बट जो प्रैक्टिस आपने की हुई है PYQ एनालिसिस की, आपकी हेल्प करेगी उस टाइम पे। कुछ लोग तो बोलते हैं कि जी कुछ लोग तो बोलते हैं कि लूसेंट हम लोग तो फॉलो करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, कहाँ तक सही है? क्या चीज़? लूसेंट फॉलो करना चाहिए? हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि लूसेंट वगैरह फॉलो कर सकते हो, उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, बट मतलब मुझे पता नहीं है ये चीज़, मैंने पर्सनली तो नोटिस नहीं की। तो ठीक है, मतलब देख लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है उसमें थोड़ा सा खुद पे रिसर्च कर लो, मतलब किसी के बोलने पे मत जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप लूसेंट से हैं, जिस जो भी ऐसा लोग बोल रहे हैं, क्या उनके वो विद एविडेंस बोल रहे हैं, अगर ऐसा है तो ठीक है देख लो। मतलब बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि लूसेंट में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। मे बी आप एक कुछ चीज़ों के लिए कर सकते हैं, जैसे आप एंशियंट हिस्ट्री के लिए मे भी देख सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली कुछ कीवर्ड्स, जैसे इसी बार था प्रदेशिका, राजुका, ये सब जो ये गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ये होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स के नेम्स होते थे। तो ये आप अगर वैसे भी नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपके पास रहेगा। तो अगर कोई बोल दे कि देखो ये तो डायरेक्टली पूछा गया लूसेंट से, तो उसको ये भी बता दो कि भाई ये तो मेरे नोट्स में भी था। तो ठीक है, मतलब आप लूसेंट्स भी देख सकते हो। अगर वही है कि अगर आपने आपका फाउंडेशन कोर्स नहीं हुआ है, या फिर आपने वो सर्टन जो बुक्स होती है NCERT से, जो भी रेफरेंस बुक्स हैं आपने नहीं पढ़ी हुई, तो फिर मे भी फिर वो लूसेंट की ज़रूरत पड़े। तो फिर वो वहाँ पे वो चीज़ आ जाती है ब्रूट फोर्स वाली, कि मैं इतना सारा लर्न कर लूँगा, इतना सारा फैक्ट याद कर लूँगा, अगर उसमें से आ जाता है तो मैं कर सकता सर देता चलिए हम लोग NCERT पे स्थित रहे या बाहर से सोच भी देते? हूँ। कौन सा? मैं समझा नहीं। कुछ भी देता चलिए, जो देता पे जो देता तो क्वेश्चन आंसर पूछी जा रही है, उस लिए हम NCERT पे स्थित ला सकते हैं या बाहर से भी कुछ पढ़ना पड़ेगा? नहीं, जैसे NCERT तो आपको करनी पड़ती है, क्योंकि आप देखो प्रीलिम्स में कई बार तो सीधे सीधे फैक्ट जो स्टेटमेंट है ना, दैट इज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम NCERT। तो NCERT से सीधे उठा के पूछ रहे हैं कुछ चीज़ें। तो NCERT तो नॉन नेगोशिएबल है फॉर प्रीलिम्स। अगर आप स्टार्टिंग भी कर रहे हैं तो एक बार प्रीलिम्स के लिए तो मतलब NCERT तो करना मस्ट है, उसके बाद ही आगे कुछ कर सकते हैं। फिर मतलब उसके आगे आपको जो भी पढ़ना मतलब पड़ी। हम बाहरी सोच तो अवॉइड करना चाहे तो? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? बाहरी सोच तो देता चलिए अवॉइड करना चाहें, ये आप मेंस के लिए पूछ रहे हैं कि प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए? कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कर सकते हैं आप। कोशिश कीजिए कि जो भी आप फॉलो कर रहे हो वो बहुत मतलब होर्डिंग मत करने लग जाना चीज़ों की, बस इतना ध्यान रखना। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लोगे, आपका प्रीलिम्स अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा। अगर आपका इंट्यूशन लॉजिक आपने नहीं किया, अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपका नहीं होगा वो, आप कितने भी सोर्सेज पढ़ लो। मैंने यही आपको पहले भी बोला था इसीलिए कि ब्रूट फोर्स मेथड मुझे लगता है कि वर्क नहीं करता इन एनी स्टेज ऑफ UPSC CSE प्रिपरेशन। तो ब्रूट फोर्स के पीछे मत जाइएगा। ठीक है, मेंस पे आते हैं। मेंस के लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 लाइनें।
लिख लिया आप लोगों ने? बस यही, और कुछ नहीं है मेंस के लिए। अगर आपने अपना जो भी आपका मटेरियल है, आपने उसको खूब अच्छे से रिवाइज़ किया हुआ है, मल्टीपल आइट्रेशंस किए हुए हैं, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस की हुई है अपनी आंसर राइटिंग की, कम से कम 3 to 4 FLTs दिए हुए हैं पर जीएस, आपको मतलब कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। आपको प्रॉब्लम मेंस में जो आती है, मेन आती है, वो आती है लो फेजेस की। जैसे मैंने तो 3 मेंस दिए हैं, तो जो प्रॉब्लम आती है मेंस की प्रिपरेशन में आती है लो फेजेस की। अब ये आता कब है, ये हर साल डिफरेंट हो जाता है। जैसे मेरे लिए होता था कि लास्ट ईयर मेरे को ये आया था अगस्त में, अगस्त एंड में, ऑलमोस्ट 20 करीब करीब 20 अगस्त करीब करीब। इस बार ये मेरे को थोड़ा जल्दी आया, जुलाई एंड में। और ये होता क्या है कि आपको लगता है आपने जो भी कुछ किया है वो इनफ नहीं है। जैसे मुझे लग रहा था जुलाई एंड में कि मेरा एथिक्स मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो पहले एथिक्स मैंने की थी, GS4 से स्टार्ट किया था, कंप्लीट हो गया था, मैंने उसके 2-3 टेस्ट भी लिख लिए थे। अब दूसरे GS के मैं प्रिपरेशन पे जा पहुँच गया था, ऑलमोस्ट मैं आई थिंक GS3 या GS2 प्रिपेयर कर था इस टाइम पे। और जब वो ख़त्म हुआ तो मुझे लगा कि GS4 मेरा बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, मैं और भी चीज़ें पढ़ सकता था इसमें, बहुत और भी कंटेंट इसको अच्छा कर सकता था। मार्क्स बहुत अच्छे नहीं मिले थे, मे बी 1-2 मार्क्स में। तो मैं मतलब ये जुलाई एंड के टाइम पे बहुत लो फेज़ था। तो मैंने मतलब फिर वही ये मेंटोर्स वगैरह जो होते हैं, अगर आप उससे बात करो तो आपको समझ में आता है, वो बताते हैं ये सेम चीज़ ना, लास्ट ईयर दीप्ति रोहिला मैम थी, उन्होंने भी ये सेम चीज़ डिस्कस की थी, ज्योग्राफी टॉपर थी लास्ट ईयर। उन्होंने कहा था उनके प्रिपरेशन में वो ऐसा हुआ था, कर्व ऐसा जाता था, फिर ऐसे हुआ था। तो ये लो फेज़ आपको ज़रूरी है, अगर आपने उस टाइम पे कंसिस्टेंसी रखी है, वो सेम चीज़ें जो आपको करनी है, आपने जो भी अपना शेड्यूल बनाया हुआ है, टाइम टेबल बनाया हुआ है, सुबह उठ के कर रहे हैं वो, और ठीक है जो भी टेस्ट है लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है कि नहीं हो रहा है, हो सकता है कम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फेज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है। और मे भी फिर आप कोई एक टेस्ट देंगे, अगर आप उस समय मान लीजिए GS1 या GS2 का कोई एक टेस्ट दे रहे हैं, या कोई एक डिस्कशन में कुछ पीयर डिस्कशन कर रहे हैं, और कुछ एक दिन अच्छा हो गया और ये फिर ख़त्म हो जाता है ये लो फेज़, और आप फिर वहाँ से ऊपर ही होना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लो फेज़ में आप कंसिस्टेंसी रखें, टाइम के हिसाब से आपके पास है वो नॉलेज, वो एक टाइम पे आ जाएगी। मे बी आप कोई, जैसे मैंने बताया, कोई मॉक टेस्ट देंगे या कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहे होंगे कि किसी और अपने साथ के प्रिपेयर एस्पिरेंट के साथ आप डिस्कशन कर रहे होंगे, और आपको समझ में आएगा कि मुझे काफ़ी कुछ आता है, तो ये आप यहाँ से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लो फेज़ में आप कंसिस्टेंसी रखिएगा, छोड़िएगा मत। कई बार क्या होता है कि जब ये लो फेज़ आता है, आप फिर सोचने लगते हैं कि वापस से चलो प्लान करते हैं, रीप्लान करते हैं, ऐसा करते हैं, वापस से GS4 को ले आते हैं, प्रिपेयर करते हैं, अपना अभी वाला जो है ऊपर नीचे कर लेते हैं। ये मत कीजिएगा, थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मेंस की प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि साइकोलॉजिकली खुद को कैसे हेल्दी रखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें सब कर लेते हैं, ये यहाँ पे लोग फंसते हैं बहुत, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और होती है इसमें, फिर आप जब मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं मेंस के टाइम पे, तो आपके मार्क्स, लास्ट ईयर जब मैं दे रहा था तब भी साथ के भी उस टाइम पे भी कई लोग आते थे कि भाई 90s में मार्क्स आ रहे हैं या 80s में मार्क्स आ रहे हैं, और बहुत डिफरेंट हो जाता है जब आपका रियल जो मार्क्स आता है। जैसे मुझे एथिक्स वाले में मेरे को जो मैंने FLTs दिए थे, मुझे 90s में मार्क्स मिलते थे, बट एथिक्स में मेरे 133 मार्क्स हैं इस बार, और लास्ट ईयर 119 मार्क्स थे। तो वो मैटर नहीं करता आपका कि 80s या 90s में मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं, तो ठीक है, वो मतलब आप सेल्फ एवेल्यूएशन कीजिए, आप पीयर इवेल्यूएशन कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। आप मॉडल आंसर से चेक करके देखिए आपने क्या लिखा था और मॉडल आंसर्स में किस तरह का है, टॉपर्स कॉपी कैसी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेंस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ ओरिजिनलिटी अपनी मत जाने दीजिएगा प्लीज़। तो ठीक है, मतलब कई सारी चीज़ें बोली जाती है कि मेंस में इस तरह के आंसर लिखने चाहिए, इस तरह के कंटेंट डेवलप करने चाहिए, बट कई लोग डायरेक्टली कॉपी करते हैं वो चीज़ टॉपर्स से, और उनका देखते हैं कि मार्क्स में उनके डिप आया है, नहीं आते हैं मार्क्स। कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की थी इन जोग्राफी ऑप्शनल दिस ईयर, और उनके 50-60 मार्क्स डिक्रीज़ हुए, मतलब सीधे सीधे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आंसर्स ओरिजिनल रखिए, आप जैसा लिखते हैं उसमें कॉन्फिडेंस रखिए। कोई बहुत आके अगर बोल दे कि भाई ये जो तुम लिख रहे हो एकदम ही गलत है, पूरा ही चेंज कर दो, ये लो एक नया टेम्पलेट ऐसे लिखो, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली वर्क नहीं करता। कई बार खुद से ट्विकिंग करना स्टार्ट कीजिए, खुद से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद का सेल्फ इनिशिएटिव लीजिए कि भाई मैं जो लिखता हूँ इसमें चेंजेस क्या क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ जो मेरे मतलब प्लॉजिबल है, जो मैं चेंजेस ला सकता हूँ, और ये मैं उन सारे 20 क्वेश्चंस के लिए कर सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक टेम्पलेट आपने कर लिया और उसके बाद आपने 20 क्वेश्चंस जाके लिखे,
अगर आपने खुद से सेल्फ इनिशिएटिव नहीं लिया इम्प्रूव करने का खुद के आंसर्स को, तो वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनलिटी रखिए और उसमें खुद से कीजिए चेंजेस। इसके लिए आप टॉपर्स कॉपीज़ का यूज़ कर सकते हैं, मैंने किया था काफ़ी। ये बहुत वेल नोन है, बट इसके बाद भी लोग इसको नहीं करते हैं, पता नहीं मतलब, बट ये आप ध्यान रखिएगा टॉपर्स कॉपीज़ का एनालिसिस, और उसके बाद यूज़ कीजिए कि कैसे वो मैप्स यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस बार मुझे एक भाई साहब ने बताई कि ज्योमेट्री, एक पेपर आप जब लेते हैं ना तो आप देखिएगा प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, कोई ज्योमेट्री का यूज़ कैसे कर रहे हैं, किस जगह पे वो हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ पे सब हेडिंग। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है मेंस में। कई बार अगर आपके पास कंटेंट उतना भी ना हो तो बहुत एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए, नाम नहीं लूँगा मैं, बट तो ये आपको ध्यान रखना है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है। प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, इस पर एक्चुअल में ध्यान दीजिएगा। मतलब आपका कंटेंट हो जाएगा, आप आंसर राइटिंग करने लग गए हैं, बट आप टॉपर्स कॉपीज से ठीक है, डेटा फैक्ट ये तो सब बताते हैं कि भाई डेटा फैक्ट उठा सकते हो, कैसे वो इंट्रो लिख रहा है, कैसे कंक्लूजन लिख रहा है, इंट्रो कंक्लूजन, ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं, कॉपी नहीं। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चरिंग, ज्योमेट्री का वो यूज़ कैसे कर रहे हैं। बहुत टाइम है उसके लिए, यही करना है, अभी कुछ नया नहीं पढ़ना। रिवाइज कीजिए और ये चीज़ें कीजिए। आप में से कोई मेंस लिख रहा है इस बार? ठीक है, तो आपके पास फिर तो बहुत टाइम है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कंटेंट वगैरह कैसे डेवलप करते हैं फॉर मेंस। तो पहली चीज़ होती है इसमें आपका जो भी, जैसे मैं जो था, मेरे पास कोई खुद के नोट्स नहीं थे। कई लोग मुझसे मांगते हैं कि भाई अपने नोट्स शेयर कर दो, बट मैं क्या शेयर करूँ जब मेरे पास है ही नहीं कोई नोट्स। तो पीडीएफ्स जो बहुत रेडली अवेलेबल थे मैं उसको फॉलो करता था, उसमें मार्किंग वगैरह करता था जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था। और लास्ट में इसके लिए भी मैंने करंट अफेयर्स के लिए कोई न्यूज़पेपर वगैरह नहीं फॉलो किया था। मेंस 365 मैगजीन आती है, मैंने उसी से वैल्यू एडिशन किया था। और वो वैल्यू एडिशन आप तब सीखेंगे जब आपका स्टैटिक अच्छा है। जब स्टैटिक में आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप वैल्यू एडिशन सीख लेंगे कि किस जगह पे मुझे क्या वैल्यू एडिशन करना है। बताता हूँ और वैल्यू एडिशन के बारे में क्या क्या। ठीक है, तो अब वैल्यू एडिशन पे आते हैं। मेन चीज़ें हैं इसमें आपके फिगर्स, जो आप इंट्रोडक्शन में भी कोट कर सकते हैं, जो आप एग्जाम्पल्स में भी कोट कर सकते हैं। और जब भी आप सब हेडिंग्स के बाद आप आंसर्स लिखते हैं तो उसके बाद सब लोग डेटा सर्टेन, मतलब वो ऐसा, मतलब जो मोस्टली होता है मैं बता देता हूँ आपको कि भाई आपने जैसे आपने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन से, फिर यहाँ आपने एक हेडिंग डाली कि भाई कॉजेज़ क्या हैं चीज़ के, उसके अंदर आपने एक सब हेडिंग डाली, बात की उसके बारे में। फिर यहाँ पे इस पे तो आप ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगाएंगे, आपने पहली चीज़ लिखी कि भाई ये सब हेडिंग जो भी थी, बोल सकते हैं आप इसको कुछ पॉलिटिकल, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने यहाँ पे बात करना चाहते हैं, आपने उसके बारे में बात किया। बाद में एक बॉक्स में एक डेटा डाल दिया। आप इसमें बोल सकते हैं कि हाँ, जैसे एक क्वेश्चन आ रहा था बहुत कि इफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट, इस पे क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है, एफिशिएंसी ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें जैसे इस यहाँ पे आप डालना है अगर आपको, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप डाल सकते हो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, ये एक कॉज में अगर जैसे आपको डालना, आपने इसके बारे में बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, आपने एक डेटा डाल दिया, एडीआर का डेटा है किसका, आई थिंक 43% कुछ ऐसा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो क्रिमिनल्स हैं। तो ऐसे करके यूज़ कर सकते हो आप डेटा का। ये डेटा आपको मेंस 365 से बहुत आराम से मिल जाएगा, सब एक जगह कंपाइल्ड। ठीक है, ऐसे आपको डेटा डेवलप करना है। वो तब डेवलप होगा जब आपका स्टैटिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि मुझे बात किस किस बारे में करनी है, तभी तो वहाँ आप डेटा प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका फिगर्स या डेटा की बात। सेकेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप मेंस 365 देखोगे तो इट इज़ स्टिल सेल्फ रिटन लाइक एन आंसर,
कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है और उसका आंसर लिखा गया है, तो आप इंट्रो, कंक्लूजन ये डेवलप करना भी सीख सकते हैं यहाँ से। आप ध्यान देंगे मेंस 365 में कई बार कॉन्टेक्स्ट लिखा होता है कि ये करंट अफेयर, वाई वॉज इट इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब वो कॉन्टेक्स्ट लिखा होगा कि क्यों ये करंट अफेयर में था, तो उस डायरेक्टली आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं विच इज़ डायरेक्टली फ्रॉम करंट अफेयर, आप उन जगह पे वो कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। ऐसा आप प्रिपेयर कर सकते हो, इट विल गिव, वो वैरायटी देता है आपके आंसर्स में। सब में ऐसा नहीं कि स्टार्ट आप डेटा से कर रहे हो या स्टार्ट आप उसकी डिफाइन करके कर रहे हो, कुछ में आप 2-3 में ये कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो कि करंट अफेयर में क्यों था, तो इंट्रो प्रिपेयर हो जाता है। कंक्लूजन है इसी बेसिस पे प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कमिटीज़ के नेम होंगे जो आपके स्पेशली GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होंगे, ये आपके GS2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको पता है, बहुत चीज़ें वेल नोन चीज़ें कि ये कहाँ कहाँ यूज़ की जा सकती है, तो ये सारी चीज़ें आपको वैल्यू एडिशन में मिल जाती हैं। सेकंड चीज़ का मैं मतलब जब भी आप मेंस के अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने की, अगर आप अभी न्यूज़पेपर्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो आप मतलब पॉइंट ऑफ व्यू आपका यही फॉलो करने का होता होगा कि करंट से अपडेटेड रहते हैं। कोई मोस्ट प्रोबेबली आजकल नोट्स तो नहीं बनाता डेली न्यूज़पेपर के, उतना ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसमें तो है नहीं। तो आप एक चीज़ और कर सकते हो उसमें, जो मैंने इस बार की थी, थोड़ा कम टाइम के लिए की थी, प्रीलिम्स से मेंस के बीच में मैंने 20-25 दिन ये चीज़ की थी कि मैंने एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ डेवलप किए थे। क्योंकि इसमें ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपने आंसर्स को थोड़ा यूनिक बना सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, जब आप सारे वही 13,000 बच्चे GS लिखने जा रहे हैं या मेंस में लिखने जा रहे हैं, तब वो उनके एग्जाम्पल्स और ये बहुत मैच करने लगते हैं, तो वो ऑलमोस्ट मार्क्स सबके फिर बराबर रेंज में आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आप मे बी अपने आंसर्स को यूनिक कर सकते हैं थोड़ा, कि आप खुद से केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करो। केस स्टडीज़ में क्या कि भाई कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई एक एग्जाम्पल आ गया, डिस्कशन किया गया, बस हो गया आपका। आपने एक वहाँ से उठा लिया, 3-4 लाइन में उसको कंसोलिडेट करके एक कोई भी बना लीजिए। डिजिटल अगर आप बना रहे हैं तो डिजिटल केस स्टडी नाम का बना दीजिए, उसके अंदर ये सारे डिस्कस कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल पूरा 25 केस स्टडीज़ आपको यूनिक ये डेवलप करनी है खुद से बस, और इसको कितने बार भी रिवाइज कर लो कम है। ऐसा हो जाना चाहिए कि भाई आपको क्वेश्चन दिखा और आपके पास एक केस स्टडी आपके दिमाग में, तो ये आप GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके ऑप्शनल में भी ये हेल्प करेगा। एग्जाम्पल्स, यहाँ पे आप एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि एथिक्स के लिए डायरेक्ट एग्जाम्पल्स आप यहाँ से डेवलप कर सकते हो। इसके लिए कुछ, इसके लिए नॉट जस्ट न्यूज़पेपर, एग्जाम्पल्स के लिए नॉट जस्ट न्यूज़पेपर, ये आप डेवलप कर सकते हो थ्रू गूगल, चैट GPT वगैरह जो भी। चैट GPT उतना तो अच्छा नहीं होगा इस चीज़ में, बट न्यूज़पेपर और गूगल आप इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे कई सारी गूगल की कुछ वेबसाइट, गूगल पे आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जैसे डाउन टू अर्थ है, उसमें आपको मिल जाएगा ये चीज़। कई सारे आपको ज्योग्राफी बैकग्राउंड से कोई, ठीक है, तो ज्योग्राफी से जैसे आपको अगर आप फिर भी आप वैसे भी जो भी आपका ऑप्शनल हो, आप बहुत आराम से यहाँ डेवलप कर सकते हैं एग्जाम्पल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड फ्रॉम गूगल। तो ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स को यूनिक बनाने में। नहीं तो सबके फिर वो 90s में मार्क्स आने लगते हैं, तो अगर उसमें 5-10 मार्क्स का एच चाहिए तो डू सम ऑफ दीज थिंग्स, मतलब कुछ उसको इम्पॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको ये ज्योमेट्री का सीखना और प्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ पे डिस्कस करते हैं, ये भी मैं मतलब मैंने इस बार पर्सनली फॉलो किया था, अब पता नहीं उसकी वजह से मार्क्स बढ़े हैं कि नहीं, बट मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, आप फिर अपने खुद से एनालिसिस कीजिएगा इस चीज़ का। मैंने ये देखा था कि कई बार हम लोग मेंस में क्या करते हैं, आदत होती है हमारी वे फॉरवर्ड हर जगह लिखने की, बट दिक्कत क्या होती है जब आप वे फॉरवर्ड एक अच्छा सा लिख देते हैं तब आपका कंक्लूजन बहुत ब्लैंड हो जाता है। कंक्लूजन में आप बहुत सारी इनपुट्स नहीं डाल पाते हैं, फिर वो आपका ऐसा हो जाता है कि ठीक है बस ख़त्म कर दिया था इसलिए। तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली आस्क नहीं किया जा रहा है क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड, तो मत डालिए। अगर आपको ऑलरेडी कंटेंट ठीक ठाक हो चुका है, फॉर एग्जांपल अगर 10 मार्क्स का है, आपने ऑलरेडी एक पेज और अगले पेज का 15% वगैरह टाइप का भर दिया है, 25% अगर आपने भर दिया है, तो डायरेक्टली आप कंक्लूजन पे आ जाइए। मतलब अगर उसमें एक्सप्लिसिटली नहीं पूछा गया है
तो आप डायरेक्टली कंक्लूजन में वो वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं। वे फॉरवर्ड मतलब आपने जैसे कोई कमेटी प्रिपेयर किया होगा या कोई बहुत अच्छा सा किसी का कोट वगैरह पता है आपको, तो बेटर ही है। मतलब तो कंक्लूजन में आप वो चीज़ डाल सकते हैं जो आप वे फॉरवर्ड में डालने वाले थे, कमेटी, कोई डेटा या कुछ समथिंग फॉर द फ्यूचर, कोई विजन टाइप का जो अपने विजन उसमें डालने वाले थे। वे फॉरवर्ड में आप डायरेक्टली कंक्लूजन में डालिए। आपने सेटिस्फाई भी कर दिया अपने जो क्वेश्चन में पूछा गया था, और बहुत अच्छे नोट पे एंड भी किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने फॉलो किया था इस बार, क्योंकि कंटेंट कितना ही डेवलप कर लोगे, बहुत कम टाइम होता है कई बार प्रीलिम्स से मेंस के बीच में। और अगर आप पहले से भी पढ़े हो तब भी प्रीलिम्स से मेंस, जब आप स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की तैयारी करिए 2-2.5 महीना, चीज़ें चली जाती दिमाग से। फिर आपको वापस से उस चीज़ में आने के लिए आपके पास उतना टाइम नहीं रहता कि आप बहुत ज़्यादा कंटेंट रिवाइज कर सको। आपको ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई थी, रिवाइज एंड राइट की, बहुत बहुत ज़्यादा बार करनी है, एक बार नहीं करनी है आपको, इसको 2 से 3 बार करना है। तो बहुत ध्यान देना है आपको कि ये सारी चीज़ें आप फॉलो करो, ताकि आपके पास जो लिमिटेड कंटेंट है उसमें सबसे बेस्ट प्रेजेंटेबल आंसर आपका निकल सके। ठीक है, अब स्पेसिफिक जीएस पे बात करते हैं थोड़ा थोड़ा। GS1, तो इसमें मेरे लास्ट ईयर भी सेम मार्क्स थे, इस बार भी सेम मार्क्स थे 92, पता नहीं क्यों ऐसा। बट GS1 में मेन चीज़ है, आपको पहले तो इसको डिफरेंट कर लेते हैं। सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है आप इन 2 में तो यूज़ कर सकते हैं साफ साफ, ये थोड़ा मतलब एडिशन करने के लिए, आप कैसे अपने आंसर्स को आप इम्प्रूव करो, वो है मैप्स। ये दोनों जगह यूज़ कीजिएगा। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के आप NCERT से मैप्स डेवलप कर सकते हैं, ज्योग्राफी के भी आप NCERT के डेवलप कर सकते हैं। अगर वही जो NCERTs में मैप्स अगर आपने वो भी प्रिपेयर कर लिया ना, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आप डायरेक्टली, आप क्वेश्चंस आएंगे ही पक्का जहाँ पे आप डायरेक्टली मैप्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैप्स प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम वट एवर आई हैव डिस्कस्ड की एग्जाम्पल्स जो भी है, फैक्ट्स, कमिटीज़ के नेम में भी जो जो जहाँ पे डाल सकते हैं डाल दीजिए। सोसाइटी के लिए भी कमिटीज़ काफ़ी हैं, वुमेन की हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए, सब आप बहुत आराम से यूज़ कीजिए। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई सेट क्राइटेरिया वगैरह नहीं है GS वगैरह में कि भाई ऐसे टॉपर्स लिख रहे हैं तो ऐसे ही मार्क्स लाने हैं। आपको लगे ठीक है, डाला जा सकता है, सेटिस्फाई कर रहा है मेरे आंसर के लिखने के लिए, मैं जो बोलना चाहता था डालिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी आप कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी GS के लिए, वो आप इधर उधर यूज़ कीजिए, वो इंटरकनेक्ट डेवलप कीजिए, वो उससे मार्क्स अच्छे आएंगे। एक चीज़ और GS1 के लिए ध्यान रखनी है कि जैसे इसमें कई दोस्त थे मेरे जो बोल रहे थे कि उनके भी 80s में मार्क्स, मतलब इसमें क्या होता है, स्टैगनेट हो जाते हैं मार्क्स, मेरे खुद के स्टैगनेट हुए। तो कई बार आपको फिर इसमें इम्पॉर्टेंट है कि फिर से वही चीज़ आ जाती है, ओरिजिनलिटी। ये इस वाले सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ज्योग्राफी में नहीं डाल सकते, क्या लेके आओगे, ज्योग्राफी इज़ ए वेरी साइंटिफिक टाइप का, खासकर जो इसमें पूछा जाता है। तो क्या लेके आओगे आप, अलग से कुछ ला नहीं सकते। क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी आपकी जो आएगी वो आपकी आएगी सोसाइटी में। ये कोशिश कीजिए कि यहाँ आप अपने आंसर्स को ओरिजिनल, थोड़ा यूनिक बना सकें। वो आपके खुद के प्रैक्टिस के ऊपर है, खुद से कीजिए, कोई उसका सेट क्राइटेरिया नहीं है कि भाई ऐसे लाई जाती है। ये खुद से कोशिश कीजिए कि कैसे आप अपने आंसर्स को ऐसा लगे कि थोड़ा सा डिफरेंट बना रहे हैं लोगों से। बस इसमें और कुछ ऐसे ध्यान करने की बात नहीं है, बाकी जो और GS के लिए और मेंस के लिए वही करना है। GS2 लास्ट ईयर मेरे मार्क्स इसमें 112 थे, इस बार 119 है। मैंने कुछ अलग से कुछ नहीं किया था, लास्ट ईयर जो किया था वही रिपीट किया, पता नहीं क्यों मार्क्स बढ़ गए। मे भी कुछ 1-2 जगह अच्छे मार्क्स उनको लगे होंगे, जो मैंने 1-2 चीज़ें एक्चुअल में विजिबली इसमें डिफरेंट की थी, मे भी जिसकी वजह से मार्क्स बढ़े, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। पर पहले GS2 के बारे में मेन चीज़ है कि जो सबको पता है, वेल नोन, कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, ये सब आपको मेंस 365 से मिल जाएंगे। आपको 20 कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेलीग्राम पे आके बता दे भाई इसका पढ़ लो, इसके से तो हो जाता है प्रीलिम, आपका मेंस सॉर्टेड। ज़रूरत नहीं है, आप खुद से करो यार, अपने आप से खुद से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जितना खुद को जलाए रहेंगे आप लोग, उतना ज़्यादा फायदा रहेगा।
उतना अच्छा यूनिक रहेगा आपका। इंटरेस्ट में वो दिखता है आंसर्स में, जो लोग ऐसे करके गए होते हैं। थोड़ा हार्ड वर्क लगता है उसमें, थोड़ा ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी कई बार आ जाती है, बट वो स्टिक किया करे उससे, बाद में अच्छे मार्क्स आते हैं उससे। हाँ, ये सारी चीज़ें मेन में, इसमें भी कुछ कमिटीज़ वगैरह आ जाती है जिसमें आप, जिनके बारे में आप, कमिटीज़ ऑन कमीशंस, जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर इसमें वही मेन चीज़ वही आ जाती है कि GS2 में हर बार देखा जा रहा है 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे ऊपर जाते हैं, आपने कहीं नहीं पढ़े हैं, कहीं नहीं देखे होंगे। तो अगर आपके पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप उन क्वेश्चंस में कोई आंसर लिख नहीं पाएंगे। ब्रूट फोर्स से वो आंसर्स नहीं होते कि लर्न करके चले गए पूरा, तो उससे भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे। आप उसमें पॉइंट्स जनरेट ही तब कर पाएंगे जब आपके पास ये कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। आप उसमें कुछ 3-4 आर्टिकल डाल देंगे, भाई ये इससे लिंक हो रहा है, इंटरकनेक्शन आपका डेवलप होगा थ्रू दिस। अगर ये नहीं है तो आप इंटरकनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपके लिए फिर ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो मैं जो पढ़ा है वो लिख के आ जाऊँगा। इंटरकनेक्शन डेवलप करने के लिए आपकी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग। अब मैं बताता हूँ कुछ जो मैंने यूनिक किया था फॉर GS2 दिस ईयर। ये था IR के लिए। बहुत मैं यूनिक तो नहीं बोलूँगा, मतलब कई लोग इसको भी करते हैं, बट मैंने खुद से नहीं किया था तो मैं इस बार किया। उसके लिए मैंने मैप्स बनाए थे। IR के लिए मैं मैप्स उतना यूज़ नहीं करता था, मैंने इस बार मैप्स IR के लिए भी प्रिपेयर करके गया था। प्रिपेयर कैसे करना है वो आपको मिल जाएगा कि IR काफ़ी ज़्यादा करंट से रिलेटेड होता है, मतलब उसमें जो चीज़ें पूछी जा रही हैं तो आप डेवलप कर सकते हो उसके हिसाब से कि मैं मेंस 365 में इन टॉपिक से चीज़ें आई हैं तो मैं मैप्स उस पर डेवलप कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको एक मैप आप प्रिपेयर कर लो, आप उससे 2-3 सवाल कर सकते हो कि भाई एक साउथ एशिया का मैप प्रिपेयर कर लिया, आप 2-3 जगह उसको डाल सकते हो। इंडियन ओशन का मैप प्रिपेयर कर लिया, आप 2-3 जगह उसको डाल सकते हो। ठीक है, मैप्स। सेकंड था कि कोट्स। आपको हर दूसरे दिन द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में एक बंदा आ जाएगा जो कि आप बात कर रहा होगा फॉरेन स्ट्रेटजी या फॉरेन पॉलिसी की। काफ़ी अच्छे अच्छे नाम हैं इसमें। तो आप उन सब के कोट्स वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आपको नहीं करने, मे बी इंडिया आसियान रिलेशन के बारे में कुछ एक कोट है तो एक कोट प्रिपेयर कर लीजिए जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर इंट्रोडक्शन। एस जयशंकर सर ने कहीं पे कुछ बोला, आप वो डेवलप कर लीजिए। तो ये कुछ ऐसी मेन चीज़ें जो पूरी चीज़ों को समअप करके एक कोट में बता दें, तो वो अब दिखाते हैं कि आपने आपने कुछ पढ़ा हुआ है, अलग से कुछ यूनिक बनाता है आपके आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें आप टॉपर्स कॉपी की भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ने IR, जैसे लास्ट ईयर कुणाल रस्तोगी थे टॉपर, वो भी बिट्स पिलानी से ही थे, तो मतलब ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उन्होंने शेयर किया था कुछ चीज़ें कि किस वे में प्रिपेयर करना है, तो वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा था फॉर कोड्स स्पेशली। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोड्स और मैप्स प्रिपेयर कीजिए, और कुछ फ्रेजेस भी होते हैं वो चीज़ें आप प्रिपेयर कीजिए। जैसे इंडिया चाइना के लिए बोला जाता है भाई चाइना वांट्स अ यूनिपोलर एशिया, अ बाईपोलर वर्ल्ड। इंडिया चाहता है यूनिपोलर साउथ एशिया, अ बाईपोलर एशिया एंड अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो कुछ इस तरह के फ्रेजेस जो मतलब डेवलप कर सकते हो, जो कहीं पे भी आप कंक्लूजन में डाल सकते हो। इसको ये बहुत मतलब आप ये दीज आर वेरी मोबाइल, सो कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका आंसर को यूनिक करेगा, रादर देन एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख दोगे तो वो उससे डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और IR में इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि IR के कई क्वेश्चंस आपको 20 मार्कर्स में मिलते हैं। इसके क्वेश्चंस ज़्यादातर 20 मार्कर्स में होते हैं, मतलब 10 मार्कर्स में भी होंगे, बट 20 मार्कर्स में भी काफ़ी होते हैं। तो यहाँ स्कोप बहुत ज़्यादा है आपका। अगर आपने डिफरेंशिएट कर लिया खुद के आंसर्स को तो मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं आपको। ठीक है, GS3 में मेरे लास्ट ईयर 95 थे आई थिंक, इस बार 104 हैं। GS3 में मेरे लिए मेन चीज़ थी, मैं आपको बता देता हूँ, दो ही चीज़ें इसमें जो मेन चीज़ें हैं, एंड दैट इज़ केस स्टडीज़। क्योंकि मैं जोग्राफी बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने काफ़ी अच्छी केस स्टडीज़ प्रिपेयर की थी खुद से भी। केस स्टडीज़ और कमिटीज़ वगैरह सबको पता है उसके नेम्स। हाँ ठीक है, सेकेंड ये इसको हटा ही देते हैं।
ये तो बहुत वेल नोन है। और मैप्स, ये दोनों चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह के लिए भी आप बढ़िया मैप्स बना के रखिए खुद के, अच्छे से सिंप्लीफाइड करके, जो आप वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर पाएँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैप्स वगैरह उस तरह से आप प्रिपेयर करके रखिए। मैप्स एंड केस स्टडीज़, केस स्टडीज़ 8-10 प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत आराम से इसमें यूज़ होती है केस स्टडीज़, क्योंकि यहाँ पे स्कोप आपके पास बहुत ज़्यादा है। एनवायरनमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कहीं पे भी कोई बेस्ट प्रैक्टिस आपको दिख रही हो, डाल दीजिए एक सिंपल सा ऐसा। ये पेपर है, अगर आपका स्टार्ट किया आपने इंट्रो डाल के, यहाँ पे आपने कॉजेज़ की बात की, कुछ उन्होंने बोला कोई स्टेप्स टेकन में आपने स्टार्ट किया, यहाँ कुछ बात की आपने, मतलब तो यहाँ पे आपके पास कॉजेज़ में आप यहाँ पे एक मैप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ स्टेप्स में आपने पहली बार बात की, आप यहाँ केस स्टडीज़ डाल दीजिए, उसको बॉक्स इन कर दीजिए। फिर सेकंड पेज पे आइए, और कुछ जो भी हैं आपके स्टेप्स वगैरह जो भी वो डाल दीजिए, लास्ट में कंक्लूजन सेंड कीजिए। तो कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो आपके आंसर डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैप्स और केस स्टडीज़ आ गए, आपके स्कोप बढ़ जाता है, आपके मार्क्स बढ़ने का। तो GS3 के लिए मैंने अलग से किया, और अलग से कुछ नहीं किया भाई, रिवाइज़ कीजिए एक ही कंटेंट को खूब अच्छे से, उसको इतना ज़्यादा इंटरनलाइज कर लीजिए कि वो आंसर आप प्रोड्यूस कर सको वहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से, बहुत होर्डिंग कर लेने से, या बहुत ऐसा समझ लेने से कि किसी कोचिंग के कंटेंट को मैं ले लेता हूँ और वो उससे आ जाएगा मेरा मार्क्स, ऐसा नहीं होता। अगर खुद से आपने प्रैक्टिस नहीं की है, खुद से खूब सारा, थोड़ा सा मतलब खुद से हार्डवर्क करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा जलाइए खुद को, ठीक है। इसमें और क्या GS3 में था, हाँ मैप्स, यहाँ स्पेशली मैप्स सिक्योरिटी के लिए, वो IR वाले के साथ जब आप प्रिपेयर कीजिए तो सिक्योरिटी को साथ में उसके प्रिपेयर कीजिए। मैं ऐसा करता था, मैं पर्सनली ऐसा करता था। आप लोग देख सकते हो, अगर आपको ठीक लग रहा हो, सिक्योरिटी और IR को आप साथ में प्रिपेयर कीजिए। तो आप कई चीज़ें जो IR के लिए आप सिक्योरिटी में भी डायरेक्टली ला सकते हो, इंटरकनेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर आप सेपरेट प्रिपेयर करें तो थोड़ा दिक्कत आती है उस चीज़ में। लास्ट ईयर 119 थे, इस बार 133। अब मैं GS4 का, मेरे से कई सारे लोग पूछते हैं कि मार्क्स में, तो खुद मतलब इसमें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए बताना, कि उन्होंने कहते हैं कि कई सारे कोचिंग, मतलब सबको बहुत पता है कि कुछ कोचिंग्स हैं जो काफ़ी वेल रेप्यूटेड है फॉर GS4 एथिक्स प्रिपरेशन, कि मैं वो फॉलो करूं कि नहीं। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि मैंने नहीं किया है तो ज़रूरी नहीं है करना। अगर आपको लग रहा है कि आपके कंसेप्ट्स नहीं डेवलप हो पा रहे हैं, आपको नहीं पता है चीज़ें, कीवर्ड्स वगैरह की किसी की बात कर रही है, अब मैं किसी से पूछूं कंपैशन के बारे में, तो उसके पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि वो 1.5 लाइन खुद के वर्ड्स में लिख सके, और विद 4-5 एग्जाम्पल्स। अगर ये नहीं कर पा रहा है वो, इसका मतलब उसके कंसेप्ट्स थोड़े से वीक है। तो ये कुछ वेरी वेल नोन कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनकी PDF वगैरह मिल जाती है कि क्या क्या मेन कीवर्ड्स हैं, सारे कोचिंग्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं। आप वहाँ से उठाइए और हर एक कीवर्ड्स के बारे में प्रिपेयर कीजिए। आप उसके लिए PYQ भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा हार्डवर्क लगती है इस चीज़ के लिए, बट अगर आपको लग रहा है कि आप कोचिंग भी फॉलो कर सकते हैं, उससे आपका कंटेंट डेवलप हो जाएगा, आपको खुद से बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप वो भी कर सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे GS4 में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका कंसेप्ट बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा ही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। सेकंड होता है आपके आंसर्स में यूनिकनेस। दिक्कत क्या आ जाती है GS4 के लिए, कि अगर आप कोचिंग से पढ़ के जा रहे हैं और वहाँ पे वो उस तरह के आंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपके मार्क्स डिफरेंट नहीं आते, आपके मार्क्स वहाँ पे सेम आ रहे हैं लोगों के। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने नोटिस की है, क्योंकि मैंने किसी से कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सिंपल PDF थी मेरी, जो मैं वो 3 साल से फॉलो करूँ, वही PDF हर बार पढ़ता हूँ। बोरियत भी लगती फिर भी वही पढ़ता हूँ, बार बार उसी का रिवाइज़ करता हूँ, उसी में से हर बार मुझे अलग चीज़ें निकल के आती हैं। जब मैं वो सेम PDF चौथी या 5वीं बार पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में आता है इसमें तो ये भी एक एंगल आ रहा है। और वो तब समझ में आता है जब आपने 4-5 बार वो पढ़ लिया है, कहीं से 2-3 न्यूज़ पढ़ ली, और अचानक से एक हिंट आई कि भाई ये चीज़ तो मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि सेम चीज़ का आइट्रेशन करो
और न्यूज़पेपर वगैरह से यहाँ पे आप वैल्यू एडिशन के लिए, जैसा अभी मैंने बताया 20-25 एग्जांपल्स, तो ये एथिक्स के लिए मेन मैंने बोले थे कि यहाँ पे आप एथिक्स के लिए खुद के अच्छे एग्जांपल्स डेवलप कर सकते हो, जो आप हर कीवर्ड्स के लिए या उस कीवर्ड से रिलेटेड कुछ भी आए उससे आप यूज़ करो। और एथिक्स में बताता हूँ 2-4 चीज़ें। आप मेरी एथिक्स की कॉपीज़ देखेंगे तो अभ्यास वाली देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, तो अगर अपलोडेड नहीं हो तो मैं बोलता हूँ कि अपलोड कर देंगे। कि मेन चीज़ मेरी रही है, सारी आप कॉपीज़ देखेंगे तो कि स्ट्रक्चरिंग थोड़ी अच्छी रही है, उसमें और इम्प्रूव किया जा सकता है प्रेजेंटेशन में वैसे, बट उस पर मैंने ध्यान दिया है। और मेरे कंटेंट में मतलब मुझे बहुत ऐसे मार्क्स नहीं मिलते थे कि ये बंदा टॉप मतलब मार्क्स मिल रहे हैं मॉक्स में, या उसको, मेरे को 90s वगैरह में मार्क्स आते थे ऐसे एथिक्स वगैरह में, या 100s में। मे बी अभ्यास में आई थिंक अच्छे मार्क्स आए थे 111, 112। बट अगर आप उसकी कॉपी देखोगे आपको लगेगा कि ठीक है, सिंपल है, टू द पॉइंट है, जिसको जो इसको समझ में आ रहा है इसने वो डाला है चीज़ें, और डिमांड को जो मेट कर रहा है एग्जांपल्स वगैरह के साथ डाला है, तो बस वही चीज़ें आपको भी चाहिए, कुछ अलग से नहीं है ऐसा चाहिए इसमें। खुद का बना के रखिएगा, मतलब बस कुछ भी चीज़ें जो भी कीजिएगा किसी की कॉपीड मत लिखिएगा, बोरोड ओपिनियंस या बोरोड कुछ भी राइटिंग मत कीजिएगा, खुद का बना के लिखिएगा। यहाँ पे जैसे ये चीज़ मैं बताऊँ कि ना बताऊँ, बट मेरे लिए क्योंकि वर्क किया है ये 2 बार, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने स्टार्ट किया था केस स्टडीज़ से। मेरे लिए होता था कि मैं एस्से लिख चुका हूँ, उसके बाद GS1 GS2, फिर उसके अगले दिन GS3, अब मैं GS4 उस दिन का लास्ट पेपर है, जो 3rd कॉन्जिक्यूटिव डे में लास्ट पेपर जो है वो GS4 का होता है। आप बहुत ज़्यादा थक गए होते हो, आपके हाथ बहुत दर्द करने लगते हैं, और उसके बाद 5 डे का गैप आता है, तो आपको लगता है यार कि 5 डे का गैप है, जल्दी ख़त्म करना है। कई लास्ट के 1 आवर्स में तो बहुत ज़्यादा फील होता है ये GS4 के। तो मैं स्टार्ट किया करता था केस स्टडी से, क्योंकि 20 मार्क्स की होती है, बहुत ज़्यादा मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप 10 मार्कर में कुछ अलग से लिख भी देंगे तो हाफ मार्क्स 1 मार्क्स में भी, बट इसमें तो आप बहुत ज़्यादा स्कोप है, 3 से 4 मार्क्स का स्कोप आ जाता है। तो केस स्टडीज से मैं स्टार्ट करता था, फ्रेश माइंडसेट, सारी चीज़ें मेरे दिमाग में अच्छे से हैं, बढ़िया से लिख सकता हूँ, लोगों के नाम याद है जिनका मैं डाल सकता हूँ, कोट्स मुझे याद हैं, फ्रेजेस मैंने तैयार किए हुए हैं जो भी, वो मैं डाल सकता हूँ, एग्जाम्पल्स मेरे पास अच्छे हैं। यहाँ पे आप ये भी यूज़ कीजिएगा कुछ चीज़ें जो मतलब कीवर्ड्स के लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली, और तो सारी आपको PDF से मिल जाएंगी। आप इंडियन एंड वेस्टर्न जो भी वैल्यू सिस्टम या जो भी फिलॉसफी है उससे कीवर्ड्स उठाया कीजिए, या उसकी फ्रेजेस उठाया कीजिए, कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक बताता हूँ आपको, एक फ्रेज़ है लोक संग्रह। अब मैं आपको ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप खुद जाके सोचिए कि ये क्या है और ये कैसे आप एथिक्स में यूज़ करेंगे। और दूसरा है समत्व बुद्धि। ठीक है, तो इस तरह के फ्रेजेस ये आपको यहीं से डेवलप होते हैं। अब फिलॉसफी सिस्टम, यहाँ से आपको कीवर्ड्स मिलेंगे इस तरह के और फ्रेजेस मिलेंगे, और जब भी आपको लगे कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें मैं ये और ये डाल सकता हूँ एज अ कॉज में, या फिर उससे रिलेटेड चीज़ में, तो तुरंत डालिए ये, और तुरंत ही एक लाइन में उसको डिफाइन कर दीजिए कि क्यों मैं ये डाल रहा हूँ यहाँ पे, वाई इज इट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। मेरी आप टेस्ट कॉपीज़ आप देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इसमें कि मैं कैसे यूज़ करता था इनका। कि बाकी मेन चीज़ ये रखिएगा, अपने आंसर्स रखिए, इसमें मैं इस चीज़ को मैं बहुत फोकस करूँगा। ओरिजिनल रखिए, यूनिक रखिए, खुद के प्रिपेयर्ड कुछ वैल्यू एडिशंस हों, इस तरह की चीज़ें कीवर्ड्स वगैरह डाल के रखिए, ओरिजिनल आंसर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और मार्क्स वगैरह मॉक्स के उस पर बहुत ज़्यादा माथा मत खपाइएगा। वैसे मार्क्स नहीं आते वहाँ पे, बहुत डिफरेंस मार्क्स आते हैं। लोग, एक और भाई है मेरे जिन्होंने 128 मार्क्स किए, उनका लिस्ट में नाम नहीं आया, बट उनको भी ऐसे ही मार्क्स मिलते थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्क्स से, मॉक्स के। ठीक है, एस्से में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कुछ नहीं बोलूँगा, बट कुछ चीज़ों का जो मैं टॉपर्स वगैरह से भी पूछा है कि इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, दैट इज़ सिंप्लिसिटी। वो जो सामने बैठा है उसको लगना चाहिए कि आपने खुद लिखा है, कहीं से बोरोड उठा के नहीं लिख दिया है।
और सिंपल आप जब रखेंगे ना तो आप बहुत आराम से मेट कर पाएंगे जो एस्से में एक्चुअली पूछा जा रहा है। कई बार हम बहुत ज़्यादा उसको एनरिच्ड बनाने के लिए हमारा मिस कर जाते हैं पूरा टॉपिक ही कि एस्से में पूछा क्या गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपल रखिए, इतना सिंपल रखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। सबके लिए डिफरेंट होगा वो सिंपल का लेवल, किसी के लिए बहुत सिंपल होगा, किसी के लिए हो सकता है वो दैट एट अनदर लेवल, बट वो ध्यान रखिएगा कि इट शुड कम नेचुरल टू यू, उसकी लैंग्वेज। ब्रेनस्टॉर्मिंग खूब कीजिए इस पर, बढ़िया सा कुछ डेडिकेटेड लोगों का ग्रुप बना लीजिए और ब्रेनस्टॉर्मिंग उसमें खूब कीजिए। प्रैक्टिस तो लास्ट के टाइम पे करनी होती है, कितना ही करेंगे उसमें, बट ब्रेनस्टॉर्मिंग तो आप हर वीकली कर सकते हैं। जैसे कई बार इसमें बोला जाता है, स्ट्रक्चर की बात की जाती है कि सर्टेन स्ट्रक्चर होना चाहिए। एस्से में बहुत फ्री फ्लोइंग रखिएगा अपने एस्से को, ये भी मैंने मतलब ये एडवाइस किया गया है। फ्री फ्लोइंग से मतलब ये होता है कि एक बहुत जैरिंग कट्स नहीं होने चाहिए कि आप बात कर रहे थे अचानक से कुछ सोशल मतलब सोशल इशू पे बात कर रहे थे रिलेटेड टू दैट एस्से, उसके बाद अचानक से आप जंप कर गए कुछ उसकी फाइनेंशियल इश्यूज़ के। मतलब वो जंप भी जो होना चाहिए इट शुड बी लिंक्ड, एक लिंकिंग पैराग्राफ या एक लिंकिंग फ्लो होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आपके एस्से में फ्लो हो। इसमें वक्त तभी होगा जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे लोगों के साथ और आप डेवलप करेंगे कंटेंट को, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर खुद से सेल्फ एनालाइज कीजिए कि क्या मैं बहुत ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा फ्लो टूट रहा है बीच बीच में और कैसे उसको सुधारा जाए, ये काम कीजिए, फ्लो पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस यही है इससे रिलेटेड, और कुछ नहीं। ऑप्शनल ज्योग्राफी था मेरा, यहाँ पे किसी का है तो नहीं, बट फिर भी मैं जो 2-3 चीज़ों का मैं इसमें मेन चीज़ है पेपर 2 में मेरे मार्क्स जो पेपर 1 में रहते थे वो ठीक रहते थे, पेपर 2 में मेरे मार्क्स कम आते थे। इस बार जो थोड़े 10 मार्क्स का इंक्रीज़ हुआ है इसकी वजह से 265 आया है। उसका मेन पर्पस ये, उसका मेन रीज़न था आई थिंक पेपर 2 में थोड़ा इंटरकनेक्शंस मैंने बेटर डेवलप किया। आई थिंक ये सारे ऑप्शनल के साथ है कि पेपर 2 थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड होता है, तो आप इंटरकनेक्शन डेवलप कीजिए कि कैसे पेपर 1 की चीज़ें पेपर 2 में डाली जा सकती हैं। आप इसके लिए यहाँ पे टॉपर्स कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो आपको साफ साफ दिख जाएगा। कई चीज़ें मेरे को इस बार एक आंसर पढ़ने से मेरे को समझ में आ गया था। एक थे हमारे एक सर थे सिद्धार्थ श्रीवास्तव से, लास्ट ईयर वो टॉपर थे, ज्योग्राफी में उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, तो मैंने उनके 1-2 आंसर्स देखे थे और मेरे को क्लैरिटी मिल गई थी कि कैसे वो यूज़ कर रहे हैं इंटरकनेक्शंस। तो ये कई बार ये सीधे खुल जाता है दिमाग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूज़ देखो कि पेपर 2 में वो कैसे इंटरकनेक्ट डेवलप कर रहे हैं। बाकी चीज़ें वही है, स्ट्रक्चरिंग प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कम वैल्यू एडिशन के साथ भी लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो वो इसी वजह से हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर मेंस। इंटरव्यूज़ पे मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। जैसे मेरे तो बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ में मार्क्स नहीं है, बट बहुत सारे अनकंट्रोलेबल्स होते हैं उसमें, यू नेवर नो। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक्स आपको करनी चाहिए फॉर इंटरव्यू, एंड दैट इज़ कि यहाँ पे आप न्यूज़पेपर रीडिंग को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अब वो क्यों है, वो उसका रीज़न है कि यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग जब आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्रिटिकल माइंडसेट के साथ कीजिएगा। क्रिटिकल माइंडसेट से बात मतलब बोथ साइड्स आपको समझ में आनी चाहिए, और फिर खुद का एक व्यू हो। तो व्यू डेवलप्ड करने के लिए इसके लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे फिर ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी इम्पॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस के लिए। मैं विजन के एलोकेशन सेशंस में आता था, दीक्षा मैम है यहाँ पे, तो वो कंडक्ट करवाते थे, तो ये वो बहुत हेल्पफुल रहता था और बहुत मेंटरिंग में भी बहुत हेल्प करते थे। तो यहाँ पे आपको हेल्प हो जाती है GD प्लस
प्लस मेंटरशिप। इसमें थोड़ा आपको समझ में आता है कि हाउ टू थिंक, मतलब कैसे प्रिपरेशन करनी है इसकी, क्योंकि ये बहुत सबसे ज़्यादा वेग जो है ना वो इंटरव्यू है। आप उसका देखोगे आप सिलेबस तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो कई बार उसको डिकोड करके ही बताना। तो मैम ने एक एक्सरसाइज हमने की थी, वो सारी चीज़ें जो सिलेबस में लिखी थी उसको डिकोड किया था कि भाई इसका मतलब क्या है, तो और वो कैसे अपने आंसर्स में जो या जो डेली कम्युनिकेशन उसमें कैसे डेवलप की जा सकती है। थर्ड है इसमें जो सबको पता है भाई, डैफ प्रिपरेशन आपका एकदम बढ़िया से होना चाहिए, तो खूब बढ़िया तरीके से डैफ प्रिपरेशन होना चाहिए आपका। और कुछ मैं मॉक्स दे लीजिए लास्ट में थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा इस तरह, बस यही चीज़ें इसकी। और एक चीज़ है जो इंटरव्यू के लिए जो सब बोल देते हैं, पर ये बहुत आई थिंक ये बहुत प्रैक्टिस के बाद ही आती है, खुद से प्रैक्टिस, दैट इज़ ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रूम में एंटर होने से और निकलने तक ये चीज़ साथ में रहनी चाहिए। जैसे रूम में एंटर हो रहे हैं तो तभी से अगर डरे हुए हैं तो वो फील आ जाता है, फिर हो सकता है पूरा इंटरव्यू वैसे चला जाए। तो बढ़िया अंदर इंटरव्यू तो सब हर जगह आपको कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि आई एम हियर। और बताइए, पूछिए जो पूछना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं बाकी तो यही है मेन चीज़ें। कुछ लोगों को जैसे ये भी बोलते हैं कि मैं 2.5 ईयर्स से मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। तो मैं जितनी भी तैयारी आपको बताया हूँ, आपने देखा होगा कि दैट इज़ वेरी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू कि एक वर्किंग प्रोफेशनल से जिसके पास टाइम की शॉर्टेज हो, तो खुद से मैं नोट्स वगैरह डेवलप नहीं कर पाता था। तो एक चीज़ प्रॉब्लम, मतलब बून भी है ये हमारे लिए, और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप कह सकते हो उसको, कि जब आपके पास टाइम कम होता है आप ऑलरेडी अपने कंटेंट को शॉर्ट कर लेते हो कि भाई नहीं पढ़ सकता मैं वो, तो नहीं पढ़ सकता, तो जो है वो पढ़ते हैं और वो कई बार काम कर जाता है। आई थिंक कई बार नहीं, हर बार वो काम करता है। तो कंटेंट को होल्ड नहीं करना चाहिए, ये फ़ायदा हो जाता है। बाकी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि थोड़ा सेक्रीफाइस ज़्यादा करना पड़ता है, सैटरडे संडेज़ वगैरह का थोड़ा यूज़ करना हो ज़्यादा, और कंसिस्टेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कुछ ऐसे दिन है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम आ गया है, कुछ टाइम नहीं भी निकल पा रहा, तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर तो उस दिन का पढ़ लो। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, या कुछ नहीं है तो फिर कम से कम उस दिन का जो भी आपका डिजिटली आपने नोट्स बनाया था वही गो थ्रू कर लो, कुछ भी, बट कंसिस्टेंसी रखो। कोई एक दिन भी अगर आप छोड़ देते हो ना, तो दिक्कत क्या होती है हम लोग के साथ कि अगर 1-2 दिन भी हमारी प्रिपरेशन रुक जाती है, फिर वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता दिमाग में चलती रहती है कि वो 2 दिन तो वेस्ट हो गया, टाइम वैसे ही नहीं, और वो 2 दिन भी चले गए। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कुछ भी कर लो, मतलब 1-2 दिन कंसिस्टेंसी रखिए। बाकी मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को कि एक प्लान भी आपका होना चाहिए। अगर आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे हो तो डू इट विदाउट बीइंग इन अ जॉब। अगर आप जस्ट कॉलेज से निकले हैं, या अगर आपके पास स्टिल इफ़ यू कैन अफोर्ड कि आप फाउंडेशन या खुद पहली प्रिपरेशन जो आपको करनी है, जिसमें आपका बेसिक्स वगैरह, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है, कि भाई अगर आप उसमें निकाल ही लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट स्टिल अगर आप वो पहली टाइम जब कर रहे हैं, तो अगर इफ़ इट इज़ विदाउट अ जॉब देन इट इज़ गुड, क्योंकि मैंने भी जब किया था तो उस समय मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो आप उस टाइम पे कर लीजिए अपनी फाउंडेशन वाली, और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आपके पास जब भी आप नेक्स्ट कर रहे होते हो और अगर आप जॉब में भी हो तो इट्स नॉट वेरी, मतलब कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होती है। आप चीज़ें रिवाइज ही करनी है, आपको वो सारी रिवाइज करनी है, और लास्ट में प्रीलिम्स से मेंस के बीच में इफ़ पॉसिबल अगर आपको लीव्स मिल जाएं, जैसे मेरे केस में होता था कि काफ़ी सपोर्टिव रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ वगैरह थे मेरे, तो मुझे बहुत आराम से लीव्स वगैरह मिल जाते थे। और मेरी पोस्टिंग्स भी ऐसी नहीं थी कि बहुत फील्ड वाली पोस्टिंग थी या बहुत असेसमेंट वाली, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होती थी प्री से मेंस के बीच में। तो आप इसमें फिर अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये फिर प्रॉब्लम आपको नहीं आती अगर आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप प्लान बी के लिए जाना चाहते हैं तो जाइए, बट अपने बेसिक्स और अपने फाउंडेशन को डेवलप करके जाइए। ऐसे मत कूद जाइएगा कि, क्योंकि फिर प्रॉब्लम वही आएगी कि आपका वो बेसिक्स भी नहीं पढ़ पाए हैं, और अगर आपको वो प्रॉब्लम आ रही है बुक्स वगैरह से पढ़ने से कि भाई मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो देन यू विल हैव टू गो फॉर अ फाउंडेशन कोर्स, और फिर जॉब में रहते हुए वो चीज़ करनी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो
अगर आप जा भी रहे हैं, कुछ प्लान बी का सोच रहे हैं, तो ट्राई कीजिए कि फाउंडेशन अपनी बेसिक प्रिपरेशन उससे पहले कंप्लीट कर, ये मेन चीज़ है। तो किसी को कुछ पूछना हो तो बस दैट वाज इट, दैट वुड बी ऑल। थैंक यू फॉर कमिंग।